न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, रुद्रा हुंडई, PN घाटी। SSC स्कैम को लेकर जारी है बीजेपी का हल्ला बोल। आसनसोल में रविंद्र भवन के सामने धरना प्रदर्शन, जितेंद्र तिवारी भी हुए शामिल। এই যে বাংলার শিক্ষিত সমাজে যে ইমেজ ছিল সারা দেশ জুড়ে, সেই ইমেজ কিন্তু আজ নষ্ট হয়ে গেল। दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज बना रन क्षेत्र, SSC स्कैम के खिलाफ जुलूस निकाल रहे ABVP के कार्यकर्ताओं पर TMCP द्वारा हमला करने का आरोप, पुलिस ने संभाला मोर्चा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा, आसनसोल में ठहराव के बाद आगे बढ़ी, बुधबुध तक जाएगी पदयात्रा। शिक्षा नियुक्ति घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने का मामला बंगाल बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर रहा है, क्योंकि विधानसभा नगर निगम चुनाव हारने के बाद बीजेपी के अंदर आपसी कलह मची हुई थी। लेकिन शिक्षक नियुक्ति घोटाले मुद्दे ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में सुपुर्दी ला दी है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आपसी कलह को भूल कर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से राजनीतिक फायदे के लिए भूनना चाह रही है। इसी के तहत बुधवार को आसनसोल जिला बीजेपी कमेटी के द्वारा BNR स्थित रविंद्र भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष दिलीप दे, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी समेत अन्य बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा है कि शिक्षा नियुक्ति घोटाले में बंगाल की गरिमा पर कालिक पोत दिया। तो चोर धरो जेल भरो আমরা করে দিলাম, কিন্তু জেলেও তো স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি থাকতে হবে। তাই আগে জেল নতুন তৈরি করো, তার জন্য আমার মনে হয় একটা কর্মসূচি নেওয়ার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন জেলার প্রয়োজন নেই, নতুন জেলের প্রয়োজন আছে। তার জন্য মনে হয় আগামী দিনে আমাদেরকে আন্দোলন করতে হবে। অনেকে বলছেন, আমাদের পিয়ুষ দা পার্থ চ্যাটার্জির কথা বলছিলেন, আমাদের ন্যাশনাল কাউন্সিলের আরো মেম্বার আমাদের তাপস দা বিস্তারিতভাবে বললেন পার্থদা নিয়ে। কিন্তু আমি বলবো যে পার্থ চ্যাটার্জির এই যে ঘটনা, এটা কোনোভাবেই বাঙালি হিসাবে, বাংলার বঙ্গ সন্তান হিসাবে আমাদের কাছে গর্বের জিনিস হতে পারে না। আমরা এর জন্য খুব আনন্দিত না। তৃণমূলকে পরাজিত করার জন্য এই ধরনের ঘৃণিত ঘটনাকে নিয়ে আমরা পরাজিত করব এমন ভাবনার কোনো কারণ নেই। রাজনৈতিকভাবেই আমরা তৃণমূলকে পরাস্ত করব, আমাদের দর্শনকে ছড়িয়ে দিয়ে, আমাদের দর্শনের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করে আমরা তৃণমূলকে পরাজিত করতে পারি। কিন্তু পার্থ চ্যাটার্জির মাধ্যমে বা ইদানিং কয়েকটা যে ঘটনা ঘটেছে, এর ফলে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বাংলার যে একটা সম্মান ছিল, বাংলার শিক্ষিত সমাজের মানুষকে যেভাবে মানুষ সম্মানের নজর দেখত, সেটা আজ কালিমালিপ্ত হয়েছে। আপনি বিহার চলে যান, আপনি উত্তরপ্রদেশ চলে যান, আপনি মধ্যপ্রদেশ চলে যান, আপনি যে কোনো রাজ্যেই যান না কেন, আপনি যদি একবার বলেন যে আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি এবং পশ্চিমবঙ্গে আমি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, অন্যান্য রাজ্যের মানুষ বাংলার মানুষকে একটা সম্মানের নজর দেখত। ইভেন আপনারা ট্রেনে দেখেছেন, ট্রেনে যদি অন্য রাজ্যে যেছেন, যদি একবার জানতে পেরেছে আপনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, মানুষ একটা আপনাকে জায়গা করে দেয়, এই বেঙ্গল से आइन को बैठने का जगह दीजिए, पढ़ा लिखा था। তো আজ আমাদের যে চিন্তার কারণ, যে এই যে বাংলার শিক্ষিত সমাজে যে ইমেজ ছিল সারা দেশ জুড়ে, সেই ইমেজ কিন্তু আজ নষ্ট হয়ে গেল। হয়তো ক্ষমতায় আমরা চলে আসবো, ক্ষমতায় আমরা কখন আসবো সে এক্সাক্ট টাইম আমরা বলতে পারবো না। হয়তো 6 মাসের মধ্যে আমরা ক্ষমতায় চলে আসতে পারি, 1 বছরের মধ্যে চলে আসতে পারি, 2 বছরের মধ্যে ক্ষমতায় চলে আসতে পারি। ক্ষমতায় আসা আর একটা জিনিস, কিন্তু এই যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, ক্ষমতায় আসার পরেও আমাদের কয়েক বছর লেগে যাবে বাংলার ইমেজ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে নষ্ট হয়েছে, বাংলার শিক্ষিত সমাজকে মানুষ যে সন্দেহের চোখে দেখছে, এই যে ক্ষতি আমাদের হয়ে গেল, সেই ক্ষতি রিপেয়ার করতে বিজেপিরও 2-3 বছর সময় লেগে যাবে। তার জন্য আমরা দুঃখিত। बीजेपी नेता ओम नारायण ने कहा कि जिस बड़े पैमाने पर शिक्षा नियुक्ति घोटाला हुआ है, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे पश्चिम बंगाल में नोटों का जो अंबार मिल रहा है, चोरी जो हो रहा है, उसी के विरोध में हम लोग को यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। क्या क्या मांगे हैं? हम लोग को मांग है कि इसको इंक्वायरी बड़े पैमाने पर किया जाए, ममता बनर्जी रिजाइन दें, और जो मंत्री है उसको मंत्री से बर्खास्त करके जेल में भरा जाए।
डाक विभाग का निरीक्षण करने और 20 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी की आह्वान पर आसनसोल मंडल के कर्मचारियों ने सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल की, लेकिन आसनसोल मंडल में हड़ताल का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। डाक विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अन्य विभागों की तरह डाक विभाग का भी निजीकरण करने में लगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से प्राइवेट सिस्टम शुरू किया था। अब सरकार डाकघर की सभी छोटी बचत योजनाओं को इसी प्राइवेट बैंक को सौंपने जा रही है। अगर डाक विभाग को प्राइवेट पोस्ट बैंक को सौंपा गया तो इसका भरपूर विरोध किया जाएगा। हालांकि हड़ताल का कुछ खास असर नहीं हुआ, क्योंकि अन्य 2 यूनियन जो हड़ताल में शामिल नहीं थे उनके सदस्यों ने परिसेवा दी, जिसके कारण डाक सेवाएं प्रभावित नहीं हुई। हड़ताल कर रहे यूनियन के एक पदाधिकारी के हुसैन ने बताया कि वे लोग डाक विभाग को निजीकरण करने के खिलाफ 1 दिन का हड़ताल कर रहे हैं। हमारे 20 दफा दाबी निये हमारे एक दिनेर धर्मघट होच्छे। সেই 20 দফার দাবির মধ্যে মূল যেটা আমাদের দাবি হলো সেটা হলো আমাদের পোস্ট অফিস প্রাইভেটাইজেশন করা চলবে না। পোস্ট অফিসকে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনা করেছে যে প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য একটা চক্রান্ত করছে, তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই ধর্মঘট। আপনারা যে এই ধর্মঘটে আজ সারাদিন কী কী কর্মসূচি নিয়েছেন? সারাদিন আমাদের কর্মসূচি মানে আমরা এখানে আমাদের প্রত্যেকটা হেড অফিসে, আমাদের আসানসোল ডিভিশনে 3টি হেড অফিস আছে। আসানসোল হেড অফিস, রানীগঞ্জ হেড অফিস এবং দুর্গাপুর হেড অফিস। এই হেড অফিসগুলোতে আমরা এখানে অবস্থান করছি এবং এই অবস্থান আমরা বিকাল পর্যন্ত করব। বিকালে আমাদের 5টা পর্যন্ত হবে, তারপরে আমরা যে যার মতো যাব এবং আগামীকাল আমাদের যেরকম ডিউটি সেরকম আমরা অফিস করব। अच्छी कंडीशन में अगर सेकेंड हैंड कार चाहिए तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगी सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। तो देर किस बात की, पधारे हमारे शोरूम में आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रिजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Sir, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue.
দিয়েছেন পুলিশের সামনে, আর এবার মানুষ দেখি আমি আজকে এখানে কেস করে পুলিশের সামনে মারবেন, আমরা ডিসপ্যাচ করে দিলাম, আমরা ডিসপ্যাচ করে দিতে চাইছি, মারবেন না, আমরা তো আছি, আমরা তো আছি, আমরা তো আছি, স্যার ওদেরই ছেলে স্যার। दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज बुधवार को रणक्षेत्र बन गया। यहां राज्य के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन टीएमसीपी और बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एसएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले के खिलाफ एबीवीपी की तरफ से जुलूस निकाला गया था। इस दौरान एबीवीपी और टीएमसी कार्यकर्ता में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज के पास का इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान टोटो और बाइकों में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना को लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी ईस्ट अभिषेक गुप्ता, एसीपी तथागत पांडे भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कॉम्बैट फोर्स भी उतारा गया। एबीवीपी का दावा है कि टीएमसीपी के सदस्यों ने उन पर हमला किया, जिससे उनके 10 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। আমাদের যে শিক্ষা দুর্নীতি হচ্ছে ওইটা এসএসসি স্ক্যাম দিয়ে আমরা যখন स्टूडेंट আছি तो আমরা স্টুডেন্টের হকের জন্য কথা বলবো। स्टूडेंट लोग के लिए आज हम लोग रोड में उतरे थे। हम लोग का विरोध प्रदर्शन करते ही हम लोग यहाँ शुरू किए। वहाँ से तृणमूल का दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज से वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन कम से कम 200 लड़का आकर के हम लोग 20 से ऊपर कार्यकर्ता को मारा है। 4 लोग अभी हम लोग हॉस्पिटलाइज है। यहाँ तक कि आम पब्लिक को मारा गया है। हम लोग का दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज का टीएमसी का यूनियन लोग और यहाँ के लोकल लोग है। ওরা শুধু আমাদের প্রোগ্রাম করতে দিবে না। ওরা চোর, ওরা চোর, ওরা চাইবে যে আমরা চোর বলে না। এটা পুলিশ কি নাম তোমার, কি নাম? মেয়ের জন্য আমরা করতে গিয়ে আজকে আমাদেরকে এত করে মারা হয়েছে। আমরা কোনো কিছু কোনো উল্লঙ্ঘন করি, তারপরও এত করে আমাদেরকে মারা হয়েছে। আমাদেরকে एबीवीपी लड़बे और लड़ते ही थाकबे। दूसरी ओर टीएमसीपी के दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिट के अध्यक्ष सुब्रज्योति मजुमदार ने कहा कि बुधवार को कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। उसी समय एबीवीपी के कार्यकर्ता माइक बजाकर जुलूस निकाल रहे थे। जब उनसे शांतिपूर्ण तरीके से माइक बंद करने के लिए कहा गया तो एबीवीपी के कार्यकर्ता उनसे उलझ गए और समर्थकों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। সংঘর্ষটা পরিকল্পিত কোনোভাবেই নয়, আমরা জানতামও না। তো আমাদের কলেজে আজকে পরীক্ষা চলছে সেকেন্ড সেমিস্টারের মূলত, আর আমরা এখানে 29 আগস্টের প্রস্তুতির জন্য সমস্ত কাজকর্ম চলছে। তো ওরা দেখলাম জোরে জোরে চিৎকার করে মাইক বাজিয়ে কলেজের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এটা রুলসে আছে যে এক্সামের টাইমে 100 মিটারের অবধি কোনো মাইক বাজানো যায় না। আমরা ভদ্রভাবে ওদেরকে গিয়ে বলি যে তোমরা মাইকটা বন্ধ করো এবং শান্তভাবে পেরিয়ে যাও, তোমরা তোমাদের মিছিল করতে পারো, অসুবিধা নেই। এই কথার মধ্যে ওরা প্রথমে জানা যে না আমরা মিছিলে মাইক ফাইক বন্ধ করবো না, গাছবাড়ি দেখায়। আমরা তবুও রিকোয়েস্ট করি না মাইকটা বন্ধ করে তোমরা যাও। তারপরে সরকারের নামে গালিগালাজ করছে, আমাদের ছেলেদেরকে দিয়ে গালিগালাজ করছে। তো আলটিমেটলি ওদের মধ্যে 3 জন ছিল যারা এগিয়ে এসে আমাদের 2টি ছেলের গায়ে হাত দেয়, যার ফলে এর গায়ে হাত দেয়, এই হাতে মারে, আর আরেকটি ছেলে আছে তাকে মারে। প্রশাসনিক যে ব্যবস্থা সেটাই নেওয়া হবে। এখন পরিস্থিতি শান্ত আছে, মারামারি হয়েছে, কমপ্লেন পেলে আমরা যেটা লিগাল সেটাই করব। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा के फूट डालो शासन करो राजनीति के विरोध में पश्चिम बर्धमान जिला राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 9 अगस्त से भारत जोड़ो पदयात्रा चितरंजन से आरंभ की गई है। 12 अगस्त को यह पदयात्रा बुधबुध में समाप्त होगी। मंगलवार को यह पदयात्रा आसनसोल पहुंची। रात्रि विश्राम के बाद पदयात्री बुधवार को आसनसोल से बुधबुध के लिए रवाना हुए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सचिव प्रसन्नजीत पुईटिंडी समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान प्रसन्नजीत पुईटिंडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मनमाने ढंग से शासन चला रही है। 9 अगस्त को महात्मा पिता 1942 साल में यानी 80 साल पहले ये आवाज़ दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हमारे पार्टी के हमारे लीडर राहुल गांधी ने ये आवाज़ दी है कि भारत जोड़ो। हम लोग आम आदमी को भी जोड़ रहे हैं ताकि बीजेपी जो पार्टी है महंगाई के खिलाफ में आम आदमी भी जुड़े और आने वाला 2024 में बीजेपी सरकार को गद्दी से उखाड़ कर फेंका जाए। बीजेपी जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई है, आज उसके लिए हम लोग भारत जोड़ो पद यात्रा हम लोग चितरंजन से हमारे जिला में बुधबुध तक के लिए हम लोग रवाना हुए। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम
ज्वेल्स ज्वेलरी, हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। ज्वेल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। ज्वेल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में नर्सिंग की पढ़ाई का सुनहरा अवसर। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल जो अप्रूव्ड है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलिएटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने की इच्छुक युवतियों के लिए 2 बेहतरीन कोर्सेज, जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बीएससी इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इंस्टीट्यूट में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग एट रिनाउंड हॉस्पिटल्स, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज, सेंट्रल एंड डिजिटल लाइब्रेरी एंड मेनी मोर फैसिलिटीज। दोनों कोर्स में प्रवेश जारी। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल नियर घाघरबुड़ी मंदिर, NH2 आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के तथ्य और सांस्कृतिक विभाग के द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में कर्मशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को सांस्कृतिक विभाग ने BNR स्थित रविंद्र भवन में 3 दिवसीय आयोजन किया है, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए बाउल एवं लोक संस्कृति के गायकों ने भाग लिया। इस मौके पर ADDA के चेयरमैन तापस बनर्जी, अतिरिक्त जिला शासक एवं तथ्य और संस्कृति विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान तापस बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के लोक संस्कृति विभाग के द्वारा स्थानीय लोक सांस्कृतिक गायकों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बाउल गायकों के द्वारा बाउल गान प्रस्तुत किया गया। আজকে সরকার থেকে একটা প্রত্যেক জেলায় আমাদের জেলায় যারা লোকশিল্পী আছে এবং যাদেরকে সরকার আমাদের সাহায্য করে, সরকার তো প্রচুর লোকশিল্পীদের সাহায্য করে এবং তাদের একটা কর্মশালা হচ্ছে। কর্মশালা এই হচ্ছে যে সরকারের প্রচুর প্রকল্প আছে, প্রায় 35-40-42টা প্রকল্প আছে। সেই প্রকল্পগুলো আমরা যদি লেকচারের মাধ্যমে দিই মানুষের মনে খুব একটা ঢোকে না, কিন্তু সেগুলো যদি গানের মাধ্যমে আমরা পরিবেশন করতে পারি তাহলে মানুষের মনে গেঁথে যেতে পারে। তো সেই রকম একটা 2 দিনে 3 দিনে একটা কর্মশালা হচ্ছে, তাদেরকে এনে তারা নিজেদের যেমন গান গাইবে, আমাদের যা বাউল আছে, লোকগান আছে সেগুলো গাইবে, তার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের যে মানুষের কল্যাণের জন্য যে কাজগুলো, সেই কাজগুলো গানের মাধ্যমে তারা যাতে, আমরাও লিখে দেবো, সরকার থেকেও লিখে দেওয়া হবে, সেই লিখে দিয়ে সেই গানগুলো যদি পরিবেশন করে এখানে মানুষ জানতে পারলো। आसनसोल
के हाटन रोड में रामधनी मोड़ के निकट स्थित उषा अपार्टमेंट में दीवान स्वीट्स एंड स्नैक नाम से मिठाई की दुकान खोली गई। बुधवार की सुबह इस दुकान का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन पुरुषोत्तम अग्रवाल ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के मौके पर पुरुषोत्तम अग्रवाल के दोनों पुत्र चेतन अग्रवाल, केतन अग्रवाल समेत पूरे परिवार के लोग मौजूद थे। जिस तरह की मिठाई और स्नैक्स दीवान स्वीट्स में मिल रहे हैं, फिलहाल नहीं लगता कि पूरे हाटन रोड में ऐसा कोई दुकान है जहां ये चीजें मिलेगी। दीवान स्वीट्स के पार्टनर चेतन आनंद ने कहा है कि उच्च क्वालिटी की मिठाई और स्नैक्स देने की व्यवस्था की गई है। ये दुकान हमारी जो है, इसमें आपकी स्वीट्स, स्नैक्स, नमकीन, केक्स, पेस्ट्री, गिफ्ट हैम्पर्स सभी उपलब्ध है। यहाँ पर नमकीन, कई प्रकार की नमकीन, राजस्थानी नमकीन, आपके नाश्ता आइटम्स सभी उपलब्ध है। मिठाई में खास क्या? मिठाई में देखिए, आपका बंगाली मिठाई, आपका छेना मिठाई, ड्राई फ्रूट्स की फैंसी मिठाइयाँ, और आपका खोया, छेना, घी मिठाई सभी उपलब्ध है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर